Why? What is They see, listen, this calling attention has to finish in 1 hour. Now it is 1 hour 40 minutes. Sir, one question. One question which the Odisha government as the Chief Minister is very concerned. The question is that without the knowledge of the Odisha government and the Chief Minister, they have allowed the Chhattisgarh government to build barrages on the Mahanadi. It should be stopped, sir. It should be stopped, and both the Chief Minister should be requested to come down, and the Honorable Home Minister and the Leader of the House is here, and then only they should be allowed. एक तरफ से हम लोग डूब रहे हैं पुरावरण में, एक तरफ से हम लोग सब सुखा रहे हैं लोगों को इस कांड में. Yeah, what is it? पहले मेरा एक मिनट, मेरा माइक आ गया ना, खत्म कर लो फिर आप आज बोल दीजिएगा. मंत्री जी ने एक चीज कही जवाब में कि ये हर बार नेपाल से बहुत पानी आता है और उसकी वजह से बिहार और यूपी में वार्निंग सिग्नल दिए जाते हैं. ये समस्या लगातार कई सालों से है, दसियों साल से चली आ रही कि नेपाल से ज़बरदस्त बाढ़ आती, पानी आता है और उसकी वजह से बिहार पिछली बार तो बहुत बुरी हालत थी 2 साल पहले कोसी रिवर का. तो जब ये समस्या पता है कि परपेचुअल प्रॉब्लम है और नेपाल से पानी आता है तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्यों नहीं सोचा जाता? पानी तो वरदान है. हम दूसरा एक मिनट नीरज हम दूसरा भाखड़ा दंगल क्यों नहीं तैयार कर सकते? वहाँ इतना बढ़िया पानी अगर मिल रहा, बजाय इसके कोई तबाही मचाए, हम दूसरा भाखड़ा दंगल बनाए और वो इस तरह से समस्या का लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें. सेकंड भाखड़ा दंगल यू शुड थिंक ऑफ. All right. Do you want to reply? If you want, you can reply. पांचेतेश्वर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो चल रहा है, वो आपने जो सवाल पूछा वही उसके लिए वो बनाया हुआ है, पांचेतेश्वर अथॉरिटी बनाया हुआ है, उसके माध्यम से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. Now, motion for appointment of members to the Select Committee of the Rajya Sabha. Okay, oh, you are asking. All right. No, this is not fair. No, you didn't stand up. You could have stand up. Down. Are you? Yes? Yeah. Strange. You can ask. So I want to ask this question to the Minister, whether your central control room, you said 24/7, whether you have 24/7 with the control room set up by all the state governments in the state capitals to issue warnings and take preventive measures. Since you have said that 24/7, and whether there is a similar mechanism that exists in the NDRF headquarters and all the state capitals, kindly inform the House. Okay, then you ask. Minister, yes. I'd like to ask the Honourable Minister that he himself admitted that the funds allocated for disaster management are not enough. No, sir, 1 second. Unusual floods took place in Jammu and Kashmir in 2014. 2013, Uttarakhand saw the vast, massive devastation. The funds may not be enough. Has the Home Ministry made any recce or tabulation of how many people have been rehabilitated, and because of lack of funds, how many still need a shelter on their heads? मैं मंत्री जी को बताना चाहती हूँ, हिमाचल में डॉपलर लग रहा है, शिमला में लग रहा है, जो ये बताएंगे कि क्लाउड बस्ट कब होने वाला. क्या इसके बारे में वो मौसम विभाग से या मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन लेंगे? सेकंड बात जो है, आपने कहा कि सड़कों का, क्योंकि भाई स्टेट का, क्या इसमें आप जो पैसा अलॉट करते हैं इनको अलग से सड़कों के लिए इसमें देंगे? ये है मेरा. Sir, as I stated earlier, the Home Ministry has an emergency control room which functions 24/7. And Madhya Pradesh also, we got the information that they have an emergency control room, and we are constantly in touch with them. And since our NDRF team are placed in all the important locations of the country, so that they have been sent there in advance, stationed there, so that in need of time, the state government can use them. That is why I said the primary responsibility lies with the state government, because we cannot act on our own, because we have to work with the state government, and the initiative has to be from the state government. That is why there is no gap.
And as regards to the issuing of warning system, all the heavy rainfall, cloud bursts, and everything we have discussed in detail. But only with regards to cloud bursts, we are unable to detect. So it is difficult to forecast because it is at a very short 1 hour, 3 hours time. It forms and suddenly it happens in a very small locality. The effect is so devastating that there are huge losses. That is why we have been very careful in dealing with the situation. So I stated the X-band facility which we have installed. At least we are hopeful that we should be able to forecast to some extent the cause of and the effect or the prediction with regard to cloud bursts. But we are again hopeful that in the future, in the near future, the efforts of the scientists to forecast the cloud bursts will bring result because the efforts are there. Not only the Indian scientists, but the scientists across the globe is making a combined effort. Okay, thank you. Now, motion for appointment of members to the Select Committee of Motion for appointment to the members to the Select Committee of the Rajya Sabha on the Prevention of Corruption Amendment Bill 2013. With your permission, Shri I Mukhtar rise to move Abbas the Naqvi. following. No, Mukhtar. आपका नहीं, उनका. Mukhtar Abbas का नाम. Mukhtar Abbas Naqvi. Sir, that this house do appoint Shri Dilip Bhai Pandya, Shri Shamsher Singh Mahas, Shri Pramod Tiwari, Shri A. Nonit Krishnan, Shri Praful Patel, Shri Harvansh, Shri Satish Chand Mishra or Shri Sanjay Raut to be a select committee to examine the Prevention of Corruption Amendment Bill 2013 in a vacancy caused by the retirement of Shri Anil Madhav Dave, Shri Chandan Mitra, Shri Avinash Pandey, Shri Nonit Krishnan, Shri K.C. Tyagi, Shri Satish Chand Mishra, Shri Praful Patel and Shri Sanjay Raut. This house also do appoint Shri Swapan Das Gupta to set select committee in a place of Shri Ram Das Athawale, who has been inducted in the Union Council of Ministers. Now, motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Now, motion for appointment to the members to the Joint Committee on the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Law and Miscellaneous Provisions Amendment Bill 2016. Sri Arun Jaitley to With move. your permission, I rise to move the following motion, that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to appoint 3 members of the Rajya Sabha to serve as members of the Joint Committee on Enforcement of Security Interest and Recovery of Debt Laws and Miscellaneous Provision Amendment Bill 2016, Vice Shri Praful Patel, Shri Satish Chandra Mishra and Shri K.C. Tyagi retired from the Rajya Sabha and communicate to the Lok Sabha that the names of the members so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolve that Shri Ramchandra Prasad Singh, Shri Satish Chandra Mishra and Shri Praful Patel be appointed to the said Joint Committee to fill the vacancies. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Now we will take up the Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Bill 2012. Time allotted is 2.5 hours. Now Sri Bandaru Dattatreya to move. Chairman sir, I beg to move the motion that the bill further to amend the Child Labour Prohibition and Regulation Act of 1986 be taken into consideration. You don't want to speak? Okay, then Sri Shadilal Batra. अध्यक्ष जी धन्यवाद। ये जो चाइल्ड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन बिल आया है देखने को तो बहुत ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके हालात क्या हैं, हम चाहते क्या हैं? हम कहते हैं कि बच्चे हमारे करुणाधार हैं, कल हमारे करुणाधार हैं, हमारे कल के भविष्य के लिए वही हमारा फेस है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो बात में कुछ सच्चाई नज़र नहीं आती। जिनको हम करुणाधार बताते हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे को
अच्छी शिक्षा दूं, बड़े से बड़ा बनाऊं और वो समाज में और देश के लिए कुछ करे। लेकिन होता क्या है, आज अगर हम देखें तो हमारे 40% जो बोल रहे हैं ना, चलो बोलते नहीं, तो 40% हमारे देशवासी बीपीएल कैटेगरी में हैं। बीपीएल कैटेगरी में आने के बाद क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जहाँ स्कूल भेजते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करेंगे, गांव वाले जैसे हैं कि हमारे मवेशी कौन ले जाएगा, उनको पानी कौन पिलाएगा, उनको किसानी 100 काम होते हैं, खेती बाड़ी में हो या मजदूरी के हों वो करते हैं, तो वो कहते हैं कैसे होंगे। तो वो बच्चों को ये कहते हैं कि वहाँ ना जाओ और कुछ नहीं, तो हमारा बच्चा अगर मवेशियों को लेके जाएगा काम करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि हमारी बचत होगी, हम आगे चलेंगे। ये यहाँ से एम्प्लॉयमेंट शुरू होती है। वो एम्प्लॉयमेंट घर की हो, वो एम्प्लॉयमेंट बाहर की हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई। एम्प्लॉयमेंट शुरू होने के बाद फिर हम आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं कि ये तो होने के बाद कुछ कार्य आगे नहीं हो रहा। एक बार आज से जो 2 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने हरियाणा में किया था कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए जब वो केजी में जाते थे तो शिक्षा फ्री होती थी, शिक्षा मिड डे मील होता था, लेकिन उसके साथ स्टाइपेंड दिया जाता था ताकि उन पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की कमाई पे चलना चाहते थे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की कमाई को आगे लेके जाना चाहते थे, उनको हर महीने मिलता रहे। हम जब तक उन फैमिलीज़ को जिनके पास साधन नहीं है, उन फैमिलीज़ को जो अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं कि वो कमा के लाएंगे और सारी कुंबा खाएगा, तो उनके लिए कुछ साधन नहीं बनाएंगे तो बात नहीं होगी। शिक्षा नहीं होगी तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे रोकेंगे, एम्प्लॉयमेंट में कैसे चलेंगे। आज अगर हम देखें तो हर साल 60,000 बच्चे इस देश में गुम हो जाते हैं। 60,000 जो बच्चे जो गुम होते हैं वो किस लिए गुम होते हैं, इसलिए गुम होते हैं कि उनके वैश्यवृत्ति होती है, उनसे भिक्षा मंगवाई जाती है, उनके अंग लेकर वो उनका व्यापार होता है। तो उनको हम रोकने के लिए कानून व्यवस्था क्या है, वो कानून व्यवस्था कुछ नहीं, कानून व्यवस्था है नहीं, शिक्षा के लिए हमारा कोई प्रोत्साहन नहीं, तो फिर बच्चों के करेंगे क्या। बच्चे जो आगे आएंगे तो उनको कोई ना कोई तो काम देना होगा, कोई सोचना होगा, और बच्चों का काम सोचने से पहले उनके माता पिता को बताना होगा कि आप हम कल आने वाले भविष्य के लिए ये जो आपके बच्चे हैं वो आगे क्या बने, इसके लिए आप थोड़ा सोचिए। और वो तब सोच सकते हैं कि जब उनको कोई साधन हो। अध्यक्ष जी, अगर हम बात करें तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमने बहुत कानून बनाए, संविधान भी कहता है, बहुत अधिनियम भी हैं, और उन अधिनियमों को लागू कितना करते हैं इस बात की आ जाती है कि लागू नहीं होते। लागू नहीं होते तो सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, आगे चलने से बात होगी कि हम कैसे करें और इसको कैसे बनाएं। आज ये जो कानून आया है, एक रेगुलेशन का बिल का आया है, इसमें एक सेक्शन 7 है कि जिसमें परमिशन दे दी गई है कि बच्चों को अगर काम करना है, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जाना है तो कितने घंटे होगा और कितना रेस्ट होगा और क्या चीज़ होगी। इसका मतलब डबल पर्पस है। मैं पहले एक मिनट सेक्शन 7 कि नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट इन एक्सेस ऑफ सच नंबर ऑफ आवर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। द पीरियड ऑफ वर्क on each day shall be so fixed that no period shall exceed 3 hours and that no child shall work for more than 3 hours before here and interval for rest of 1 hour। ये क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि हर आदमी ये चाहेगा कि वो जो बच्चा मेरे में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है उसको एक रजिस्ट्री तो भरना होगा कि 3 घंटे काम किया, 1 घंटे का बच्चे को रेस्ट दे दिया, वो काम कर ले। इससे क्या प्रभावित होगा? इससे प्रभावित हो जाएगी उसकी शिक्षा, इससे प्रभावित हो जाएगी कि वो काम करने की उसकी जो भावना है वो ऐसी बढ़ जाएगी कि वो कहते मैं काम करता रहूँ। उसको अपने भविष्य का नहीं मालूम कि मेरा भविष्य क्या है, उसको ये मालूम नहीं कि आने वाले कल में क्या होगा। तो फिर ये हम कैसे करेंगे? हम दो मुंह जुबान जो बोल रहे हैं, एक तरफ से रेगुलेट कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर हो और एक तरफ हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर ना हो। चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात का हामी हूँ, लेकिन मैं इसके साथ एक बात का और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिक्षा जहाँ हम अनिवार्य करते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा मिलने के लिए हम अगर उनको हर महीने स्टाइपेंड दें केजी से लेकर ऊपर तक
और उन परिवारों को जो बीपीएल में हैं, तो हम एक ऐसा करेंगे कि एक अच्छा नागरिक बना सकेंगे। आज एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे आ जाएगा। तो हम उसमें ये कर रहे हैं कि हम एमएनडीज में ग्रांट दे देते हैं, जो हम ये कहते हैं कि ये तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, तो हम उनको किसी बात जब वो पढ़ें, हम किसी बच्चे को भिखारी नहीं बनाना चाहते, उसके हाथ को इतने योग्य बनाना चाहते हैं कि वो काम करके आगे चल सके। उसमें अध्यक्ष जी बात आगे और चलती है, तो ये चलती है कि जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हम कैसे पूरी करेंगे। चुनौतियां पूरी होंगी कि गरीबी का निवारण ख़त्म हो, गरीबी ख़त्म हो, पहली बात। फिर शिक्षा के लिए हम इतने अच्छे स्कूल बना दें कि बच्चा वो जाए तो उसका वहाँ ये कहे कि वाकई ही बच्चा एक ठीक चल रहा है, और बच्चे चलने के बाद उसको ये करें कि उनके बाद ठीक है। आज बच्चे के क्या है, जहाँ हम सोचते हैं कि बच्चे के पीठ के पीछे, बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, उसके सिर पे ईंटें हैं, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, उनमें दूसरे हैं, वो काम करने में ज़्यादा लगता है, ऐसा बच्चा पढ़ नहीं सकता। और यही कारण है कि माइक हो गया माइक तो, और यही कारण है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के बजाय एक मजदूर बना रहे हैं। अच्छा मजदूर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए और अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो हमने डिस्टिंक्शन करनी होगी, ये सोचना होगा। आज चाइल्ड वेलफेयर लेबर का जो प्रोविजन बिल आया है, ये आज का बिल नहीं, ये हमारे भविष्य को उठा देगा, ये भविष्य का बिल है। और भविष्य के बिल के लिए हमने अपनी जनरेशन को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाली कौम को आगे कैसे ले चलना है कि यहाँ से चलेंगे। उसको लेबर से रोकेंगे तो उसके लेबर रोकने से उसको साथ हम शिक्षा दें, उसको इतना अच्छा नागरिक बनाएं कि ठीक है, तो फिर वो आगे चल सकेगा। इससे आगे अगर हम चलें तो हमारे देश कितना खुशहाल, कितना बनो, बहुत बच्चों को सुनिश्चित देखभाल और विकास पर भी हमारी बात जानी चाहिए। देश के स्वतंत्र हुए 67 वर्ष हो गए हैं, बाल मजदूरी के संदर्भ में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जो कि देश के विकास में बाधक बनती जा रही है। कुल मैं फिगर देना चाहूँगा, 25.2 करोड़ बच्चों में से 5 से 14 वर्ष की आयु समूह के 1,026 बच्चे बाल भूमिका में हैसियत से काम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 12 लाख बच्चे खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत हैं। तो इतनी संख्या में हमारे बच्चे हैं, लगे हुए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्यों कि वो आतंकवाद कहाँ से शुरू होता है? आतंकवाद यहीं से शुरू हो जाता है कि जब बच्चा इतना ना कमा सके जिससे वो अपना गुजारा कर सके, इतना ना कमा सके कि अपने परिवार को पाल सके, इतना ना कमा सके कि जो सामाजिक उसके ऊपर जिम्मेदारी लगी हैं उन जिम्मेदारियों को दूर कर सके, तो फिर क्या होगा? वो यही होगा कि वो आतंकवाद की तरफ जाएगा। तो इसके आतंकवाद से अगर हमें बचना है, भुखमरी से बचना है और इस व्यवसाय से बचना है, तो हमें एक करना होगा। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ ऐसा वातावरण बनाना होगा, ऐसा सोचना होगा कि वो लोग आगे आप सोचें कि हम भी आज़ाद भारतवर्ष के बच्चे हैं, और हमारे ऊपर जो भी कर्तव्य हैं या हमारे से जो भी आशाएं की जा सकती हैं, हमारे से जो भी अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम अपना कार्य करेंगे। तो प्रधान जी, अध्यक्ष जी, वो कार्य कैसे पूरे करेंगे, कब करेंगे? उसका बचपन से शुरू हो जाता है। अब हम कहें कि एडोलेसेंट बच्चे तो 14 से 18 तक हैं, उनको तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए जो विस्फोटक ना हो, जो दूसरी ना हो, लेकिन 7-8 साल से बच्चे काम शुरू कर देते हैं, तो 14 तक वो क्या करें? उस एज को हम कैसे करेंगे, इसके लिए सोचना होगा। ये जो बिल आ रहा है कि जिसमें आप रेगुलेशन कर रहे हैं और बच्चों को सर्विस दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि 3 घंटे के बाद ये एक और बेईमानी की तरफ जाएंगे, ये और सोचेंगे कि भाई इस कानून को हमने वायलेट कैसे करना है। कानून बहुत है, कानून बहुत है, और कानूनों की कमी नहीं है, लेकिन उनका लागू नहीं होते, और लागू नहीं होते तो एक सोचते हैं कि इनकी वायलेशन के लिए हमने ये करना है। तो मैं तो आज एक ही आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो भी है
जो सोचे, हम इस दृष्टि से सोचते हैं कि हम ये काम करना है, उसमें कोई किसी प्रकार का कंसेशन देकर ये नहीं कहें कि इसको रेगुलेट कर दें। बच्चे की सर्विस अगर लग जाती है, बच्चा काम करता है तो कोई बात नहीं, 3 घंटे काम करो। वो 3 घंटे काम नहीं करेगा, वो हमेशा के लिए अपने आप को ये सोच लेगा कि मैंने तो नौकरी करनी है और नौकरी यही बच्चे है। और फिर उसका बचपन जो एक होगा कि जहाँ कोई गलती होती है तो मालिक जो जिसके नौकरी कर रहा होता है उसकी पिटाई करके उसको इतना डरा देते हैं, इतना धमका देते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल सहम जाता है। यानी बच्चा अपने जीवन में खुल के आगे नहीं आ सकेगा, काम नहीं कर सकेगा, पढ़ाई नहीं कर सकेगा और उसके बाद वो सहमा बच्चा अपना नहीं अपने परिवार का भी आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाएगा। उसके लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा काम करूं कि जिससे हो। और आतंकवाद यही है, आज ये आम खबर आती है कि पत्थर फेंकने हैं तो 5 रुपये दिन के देते हो एक बच्चे को और वो पत्थर फेंकेगा। और 500 रुपये बच्चे लेके और जो पत्थर फेंकते हैं वो चोटें लगती हैं तो क्या है, उस बच्चे का जीवन का क्या होगा, उस जीवन के कितना हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए बच्चों को कहीं भी ऐसे कोई काम ना करने की वजह से कि वो जो असामाजिक हो, जो इलीगल हो, जो ठीक ना देश के लिए हित में ना हो, ऐसा बच्चा काम ना करे। वो तब हो सकता है कि जब हम उसको पूरी शिक्षा देकर उसको ऐसा वातावरण दे दें कि उसने इस अच्छा नागरिक बन के देश की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, अपनी सेवा करनी है। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर सत्यनारायण जातिया जी। माननीय उपसभापति जी, बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय संशोधन विधेयक के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और यह जो संशोधन इसमें किए जा रहे हैं कोई नए नहीं है, पहले से ही इसके बारे में चर्चा हुई है। और जो काम करना चाहिए, जो पहले से प्रतीक्षित हैं, उस काम को अंजाम देने के लिए ये विधेयक हमने लाया है। इसके उद्देश्यों के बारे में यदि हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से बालक श्रम अधिनियम 1986 कुछ नियोजनों में बालकों को लगाए जाने का प्रतिषेध करने और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियम करने का उपबंध करता है। 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को भी काम में नहीं लगाना चाहिए। यह बात मुख्यतया इस मान्यता के आधार पर है कि वह यह जो उम्र है उस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, शिक्षण करना चाहिए। देश के भविष्य को निर्माण करने के लिए यह जो बाल शिक्षा है वो बहुत जरूरी है। परिस्थितियों के कारण से जब घर में रोजगार नहीं होता है, घर में और कोई कारोबार नहीं होता है गुजारे लायक, जब उसके माँ बाप रोजगार की तलाश में और उस अनिश्चितता में बाहर निकलते हैं तो बच्चे भी उनके साथ जाते हैं। गांव में तो अब रोजगार का बहुत अवसर कम हो गया है क्योंकि कृषि का रकबा कम होते चला जा रहा है और उसके कारण से उसमें से गुजारा नहीं हो रहा है। किसानों का प्रायः जो छोटे किसान हैं उनकी तो बहुत स्थिति खराब है। यदि उनके पास बराबर रकबा नहीं है तो उनको मजदूरी करना ही होती है। तो ऐसे समय में वो जो बच्चे हैं वो माँ बाप के काम में हाथ बटाने के लिए या तो अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं या फिर वो जहाँ उनको काम मिलता है, चाहे वो शहरों में मिले, चाहे और पास के किसी गांव में मिले, चाहे और किसी योजना के अंतर्गत मिले, तो बच्चा तो महरूम हो जाता है, बच्चा वंचित हो जाता है कि उसको पढ़ने के लिए जो मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये नियम कहता है कि जो बच्चा नहीं पढ़ता है या जो बच्चा काम पर नहीं जाता है या जो बच्चा पढ़ता भी है किंतु पढ़ने के बाद भी अपने घर के कामकाज में हाथ बटाने के लिए इसको और इजाज़त मिलना चाहिए। अब घर के कामकाज में इजाज़त मिलना चाहिए, इसमें किसी को मना नहीं, क्योंकि वह वहाँ पर सीखता है और परंपरागत रूप से अपने उस रोज़गार को तो सीख ही लेता है जिस काम में वो अपने माँ बाप को काम करते हुए देखता है। किंतु जो काम आउटसोर्सिंग जिसे हम कहते हैं, बाहर से काम को लाना और बच्चों के माध्यम से उसको पूरा करवाना, ये ठीक नहीं।
और इसके कारण से वो जो उसका जो शिक्षा का समय होता है, सीखने का समय होता है, वो उसको कमाने के समय में यदि परिवर्तित कर दिया जाता है तो बच्चों का जो विकास है वो रुक जाता है। तो इस कानून में ये कहा गया है कि हाँ, ऐसे बच्चों को जो कि उसके परिवार के लिए काम किया जा रहा है उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए, और उस व्यवस्था में कहा है कि कलेक्टर के अंतर्गत कुछ व्यवस्था ऐसी निरीक्षण परीक्षण की करना चाहिए जिसमें ऐसे कामों को यदि कोई बेजा वजह से या ऐसे कामों को जिनमें कोई उनको नहीं करना चाहिए ऐसे कामों में लगाया गया है तो उसको सजा के प्रावधान होंगे। पहले वो 3 महीने से 6 महीने का, 3 महीने से 1 वर्ष का प्रावधान थे, अब 6 से लेकर के 2 वर्ष के उस प्रावधान को बढ़ाने के बारे में कहा गया है। परंतु व्यावहारिक स्थिति यह है कि ऐसे बच्चों का तलाश करके और उनको निकाल के लाना और उनका पुनर्वास करना, और इसके लिए चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं उन चाइल्ड प्रोजेक्ट में और निश्चित रूप से उनका शिक्षण का काम करना। अब ये शिक्षण के काम के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो भी बहुत थोड़े, कहीं कहीं तो बंद हो रहे हैं। मुझे ये मालूम है कि जहाँ जहाँ ये थोड़े बहुत चल रहे होंगे तो उसको भी कहा जा रहा है कि ये बाल श्रम जो है ये हमारे लिए समाज के लिए कलंक है, अपराध है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भी इस सारे काम में और हम सजग होकर के इस बारे में उनके कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में हम चिंता करने का काम करते हैं। तो स्थिति ये हो गई कि चाइल्ड लेबर जो प्रोजेक्ट बने हुए उसके अंदर चलने वाले बाल विद्यालय हैं, उन बाल विद्यालयों के बारे में भी कोई स्पष्ट और घोषणा जो करना चाहिए वो हमको करने की आवश्यकता है। और जो चल रहे हैं उनको ठीक प्रकार से कैसे चले, क्योंकि ये राज्य सरकार चलाने के लिए उसके लिए तैयार होती नहीं और ये प्रोजेक्ट होते हैं केंद्र सरकार के, तो परस्पर समन्वय के अभाव में ये सारे जो प्रोजेक्ट चलते होते हैं वो कहीं चलते हैं कहीं नहीं चलते हैं, और उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे सारे काम में जहाँ प्रशिक्षण करना हो, बच्चों को कुछ सिखाने का काम हो, परंतु वो शिक्षा के अलावा इस प्रकार के कामों के अंदर उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, काम करने के लिए उपाय हमको करना होंगे। और ये जो प्रावधान बनाए गए हैं कि हम इनको ऐसे कामों में जो कोई भी नियोजित करेगा उनको और उनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, ऐसे कामों के निरीक्षण भी होते हैं। परंतु कुल मिलाकर के चूँकि ये जो शिक्षा का काम है, ये जो प्रशिक्षण का काम है, ये जो एक मंत्रालय का काम है, ये सारे मंत्रालय के काम में इसमें 3 मंत्रालय प्राय सम्मिलित हैं। मानव संसाधन मंत्रालय जो सर्व शिक्षा अभियान की बात करता है, अब सर्व शिक्षा अभियान में जो कुछ अब हमको उपाय करना चाहिए उस उपाय को करने के लिए बच्चों को हम गाँवों से लेकर के एक स्थान पर लेकर के आते हैं और उनके शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, उनका छात्रावास बनाते हैं, छात्रावास की व्यवस्थाएँ करते हैं। परंतु ये काम को करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए पर्याप्त संसाधन होने के कारण से वो काम को करने में भी और मुश्किलें आ रही है, और ये प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो बाल और महिला कल्याण का जो मंत्रालय है उसमें भी जो आंगनवाड़ी और वो बाकी की बातें जो होती है उसको मिलाकर, और जो तीसरा मंत्रालय जो श्रम मंत्रालय, ऐसा तो ऐसे तीनों मंत्रालय को साथ में बैठ करके एक ऐसी योजना बनाना चाहिए जिसके कारण से हम जो बाल शिक्षा के बारे में चिंता करना चाहते हैं, उनके प्रशिक्षण की बात करना चाहते हैं, उनके भविष्य की बात करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य है ये कहने में अच्छा लगता है, बच्चों ने काम नहीं करना चाहिए यह भी अच्छा लगता है, बाल श्रम नहीं होना चाहिए यह कहना भी अच्छा लगता है, किंतु इसके पीछे की जो परिस्थितियाँ हैं, वो जो गरीबी है, वो जो परेशानी है, परिवार की जो मुश्किलें हैं, और इसके लिए जो देश में हम राजनीतिक तौर पर कहते रहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, फिर अच्छा कुछ समय लेके आएंगे, फिर उसका हम कहते हैं कि इनके लिए कुछ बातें करेंगे। ये बात अलग है कि इस सरकार के आने के बाद से हमने इसके लिए और कुछ अच्छे उपाय करने का कोशिश किया है। हमने लोगों की बेहतरी लाने के लिए जनधन योजना, मुद्रा योजना, इस प्रकार से रोजगार को स्थापित करने के काम की, पर अभी ये प्रारंभिक अवस्था है, और ऐसी अवस्था में ये दोनों बातें साथ साथ चलाने के लिए ज़रूरी है कि जब तक इन सारे कामों से और हम गरीबों को रोजगार देने का काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक जो बाकी की योजनाएं चली हुई है उनको अच्छी प्रकार से चलाने का काम करें। और ये जो संशोधन लाया गया है इस विधेयक का, ये संशोधन बहुत प्रतीक्षित था और निश्चित रूप से एक पहल है कि इस तरह में कि हम बेहतर और बाल श्रम को किस प्रकार से अच्छा कर सकें, बाल श्रम को किस प्रकार से और वंचित कर सकें बाकी के कामों में। हैजर्डस कामों के बारे में कहा गया। अब हैजर्डस कामों में जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत है वही सारे प्रोसेसेस हैं, और उन सारे प्रोसेसेस को जाने के लिए जो 65 और सारी प्रोसेसेस बताई गई है उसमें उनको नहीं करना चाहिए। किंतु ये जो मजदूर है वो तो होटल में काम करता है, वो लोगों के घरों में काम करता है, वो किस प्रकार से उनकी परिस्थितियाँ हैं,
तो ये जो सारी बातें हैं उसके लिए भी एक अलग सूची बना करके उसमें जोड़ने का काम करना चाहिए। जो हैजार्डस कहा है फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, उस फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो हैडर्स हमने खतरनाक कहा है, उस खतरनाक की सूची को पुनरीक्षित करने का काम करना चाहिए और ऐसे कामों को सम्मिलित करना चाहिए जो व्यवहारिक अभी दिखाई देते हैं। तो मोटे तौर पर प्रारंभिक तौर पर ये जो लाया गया हमारा जो विधेयक है उसका मैं समर्थन करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो सुधार करने की गुंजाइश है वो तीनों मंत्रालय को साथ में बैठ करके, जिसमें हमारा जो लेबर मंत्रालय और बाकी की जो ट्रेड यूनियंस भी हैं उनको भी, भारतीय मजदूर संघ में मैं वर्षों से काम करता आया हूँ, मुझे प्राय 50 साल इस आंदोलन मजदूर आंदोलन से जुड़े हो गए हैं और मैंने बाकी के श्रम मंत्री रहते हुए भी बाकी के ट्रेड यूनियन से बात करने का मुझे काम मिलता है और ILO में जाकर के भी हम इस प्रकार के कन्वेंशंस को पारित करने का काम करते हैं, डिसेंट वर्क की हम बात करते हैं। तो ये सारी बातें जो कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी दिखाई देती है उसको व्यवहार में लाने के लिए हमें कारगर उपाय निकालने होंगे। अभी जो शुरुआत की है उसका मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए अनुरोध करूंगा कि एक ऐसी समिति बनाए जिसमें कि आगे आने वाले समय में हम बेहतर और इस कानून को बाल श्रम को प्रतिषेध करने के लिए और बाल शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उनका प्रशिक्षण करने के लिए अधिक कारगर उपाय कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रवि प्रकाश वर्मा जी। सर, बड़ी उम्मीदों से आज देख रहे थे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में क्या होने वाला है। सर, मैं भी बहुत परेशान हूं, कई बार कह चुका हूं कि हिंदुस्तान में ये गरीबी, लाचारी, मजबूरी और बदहाली की उम्र कितनी होगी। मैं मंत्री से पूछना चाहता था कि आज हम बच्चों को चाइल्ड लेबर पे थोड़ा सा अमेंडमेंट ला रहे हैं और ख़ास तौर पर 14 से 18 साल के बच्चों को एलिजिबल कर रहे हैं कि वो फैमिली के एंटरप्राइज में काम करेंगे। तो फैमिली का जो एंटरप्राइज है उसके जो डायमेंशन है उसका जो असर दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है सरकार ने गौर किया नहीं उसके ऊपर। सर, हमें कभी कभी लगता था जब से हम लोगों ने भाग्य सीख लिया, अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे, पूर्व मंत्री जी, कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। क्या करेंगे जब भाग्य ही खराब होगा लोगों का। हिंदुस्तान में तो भाग्य बहुत चलता है, अगर कुछ नहीं हो पाया तो भाग्य के सहारे। 70 साल हो गया सर हिंदुस्तान की आजादी को। लाचारी, मजबूरी, गरीबी, बदहाली और बच्चों के साथ शोषण, ये हमारी सामाजिक परंपरा है। सब बड़ी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर बच्चों से मजदूरी कराना किसी को शर्म नहीं आती। ये एक डिमांड है लोगों की कि नहीं, बच्चे का नौकर चाहिए। और हमारी सरकार पीस मील में काम कर रही, पीस मील में, टुकड़ों टुकड़ों में दिल भर रही हिंदुस्तान की जनता का, दिखा रही कि संसद बहुत काम कर रही। रिजल्ट क्या है? वही के वही। सर, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, हिंदुस्तान बच्चों के शोषण करने का सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। और इस ऑर्गेनाइज सिस्टम से लड़ने के लिए हमारे पास में इतना लचरा कानून, इतना कमजोर कानून। सर, आज तक हम डिफाइन ही नहीं कर पाए चाइल्ड लेबर है क्या भला। सर, हाई कोर्ट ने इस बात का इंदराज किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था डिफाइन करिए और चाइल्ड लेबर का टोटल एलिमिनेशन करने के लिए एक्शन प्लान बनाइए। सरकार एक काम कर रही है, पीस मिल में काम कर रही है। सिर्फ चाइल्ड लेबर का जो इश्यू है ये कोई मामूली इश्यू नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में लोगों को प्रभावित करता है। और सर, बड़े अफसोस की बात है कि इसी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी जो सिफारिशें रखी उसमें साफ साफ इस बात का इंदराज किया कि जो प्रावधान किए जा रहे हैं, सरकार जिस नियत से, जिस मंशा से इसमें चेंजेस ला रही है वो ठीक नहीं, वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, आर्थिक सुधारों के नाम पर हमने इस देश की व्यवस्था को और संसाधनों को बाहर वालों के हवाले कर दिया। हम बहुत खुश हैं, मेहरबानी करके रहम करिए, माननीय मंत्री जी रहम करिए, ये सरकार रहम करे हिंदुस्तान के बच्चों पर। इन बच्चों को भाग्य के सहारे मत करे, ये बहुत जिम्मेदारी आपकी है। आखिर ये बच्चा लेबर कैसे बन जाता है? मैं पहले भी यहां संसद में कह चुका हूं कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, जिन बच्चों को हमें एक मानव संसाधन के तौर पर विकसित करना है, इस जिम्मेदारी को हमें महसूस करना चाहिए। आज वो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं और हम यहां बैठ करके तसल्लीजनक तरीके से चर्चा कर रहे हैं। सर, ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, ये तो एक समग्र क्रांति का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं और सरकार को भी बता देना चाहता हूं
कि इस हिंदुस्तान में स्टेट्समैन बनने का रास्ता खुले बाजार के रास्ते से नहीं है। स्टेटमैन बनने का रास्ता WTO के माध्यम से भी नहीं है, वो अमेरिका से युद्ध संधि करके भी नहीं है, वो बच्चों के दिल में राज करके आगे बढ़ने का रास्ता है। हमने देखा अभी कुछ समय पहले जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हुआ, उनके निधन होने के बाद सिर्फ ये पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। हिंदुस्तान का हर बच्चा, चाहे वो किसी कौम का था, चाहे किसी मजहब का था, उसके दिल में चोट थी। आज हमको ये रास्ता दिखाई पड़ गया कि हिंदुस्तान में कैसे स्टेट्समैन पैदा किया जाता है। आज हम सरकार से इस बात का आग्रह करते हैं कि वो बच्चों के दिल में झांक के देखें। वो 22 करोड़ बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में हैं और इतने ही बच्चे जो इससे ऊपर के स्कूलों में हैं, आज वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपकी तरफ किस लिए देख रहे हैं, आज आप क्या करने जा रहे हैं उनके साथ में। सर, हम इस बात के लिए पूरे तौर पर कह देना चाहते हैं, ये जो आपने 14 से 18 का डिवीजन कर दिया है बच्चों के बीच में, ये न्याय संगत नहीं है। ILO कन्वेंशन 138 साफ साफ कहता है कि किसी भी हाल में हम हिंदुस्तान, पूरी धरती के, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, पूरी धरती के 0 to 18 इन बच्चों को हम ऐसे कारोबार के हवाले नहीं कर सकते जहां पर उनका शारीरिक या उनका मानसिक या उनका नैतिक कहीं ना कहीं शोषण होता है या उनका पराभव होता है। पर आज हम कानून में एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। 1975 में इसी संसद ने यह तय किया था कि हिंदुस्तान के बच्चे हमारे सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। कहां गया वो संकल्प, किस रास्ते चला गया वो संकल्प, क्यों भूल गए उस संकल्प को। हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चों के साथ ऐसा धोखा मत करिए, इस बात की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। सच्चाई तो यह है कि 1987 में नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर बनी। क्या कह रही थी, हम कहां पहुंचे। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 21A, इसके लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया। सर, 2006 में प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड होटल, ये अचीव किया गया। उसके बावजूद भी 2011 की सेंसस में आपको मालूम है कितना बच्चा चाइल्ड लेबर था। जब हम सरकार की बात सुनते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि नौकरशाही बोल रही है, ये कोई जनता का नेता नहीं बोल रहा। आपको तय करना पड़ेगा, आप जनता की पब्लिक के साथ खड़े हिंदुस्तान की, कि आप नौकरशाहों के साथ में खड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान के नौकरशाहों की जो सीमाएं हैं वो हिंदुस्तान की सीमाएं नहीं बन सकती, ये मैं आपसे आगाह कर देना चाहता हूं। जिस तरीके से आप लोग इस बात को लेकर चल रहे हैं, ये समझ में आने के लायक बात नहीं। सर, आखिर बच्चा बाल श्रम बनता कैसे है। ये तय हो गया था कि हर बच्चे को स्कूल में होना है, और ये एडहॉक सिस्टम, ये सर्व शिक्षा अभियान का एडहॉक सिस्टम हम तो कई बार कह चुके हैं। इस हिंदुस्तान में एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बन के आता। एक अरे ये इतना बिल है, महत्व का बिल है, लेबर मिनिस्टर भी होना चाहिए, लेबर मिनिस्टर भी है सर, इस पर तो प्राइम मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर भी है। ये हिंदुस्तान के 42 करोड़ 50 करोड़ लोगों का खाली लेबर मिनिस्टर का नहीं है, चाइल्ड वेलफेयर की भी बात है। सर, मैं सिर्फ आगाह कर देना चाहता हूं कि कहां पर चूक हुई है। जिस देश के अंदर आजादी के 10 वर्षों के बाद में ही हर व्यक्ति को शिक्षित हो जाना चाहिए था, वहां पर आज भी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। और दुर्भाग्य है हमारा कि आज भी हम अपने नन्हे बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए हम कोई एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पाए। एक एडहॉक सिस्टम के सहारे, तदर्थ व्यवस्था के सहारे, सर्व शिक्षा अभियान के सहारे हम उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं टीचर नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं किताबें नहीं है, कहीं कोई समस्या है, और हम टीचर नहीं दे रहे। दुर्भाग्य है कि हम उनको टीचिंग सर्वेंट्स के हवाले कर दे रहे हैं, जिनको पढ़ाने से बच्चों से मोहब्बत नहीं है, उनका बच्चों से पढ़ाने में मन नहीं लगता। आज यही कारण है कि ड्रॉप आउट है। आधी आबादी जितने बच्चे इनरोल्ड हैं, लिटरली उसका 50% ड्रॉप आउट है। आप कह सकते हैं, आपके पास में आंकड़ा है कि हमारे पास में लगभग 4.35 मिलियन चाइल्ड लेबर हैं जो सेंसस में आए, लेकिन जो गैर सरकारी संगठन हैं जो समाज के बीच में रहते हैं, उन्होंने बताया है कि ये तादाद 11 मिलियन से भी ज्यादा है, 1 करोड़ से भी ज्यादा। ये कोई छोटी घटना संख्या नहीं।
लेकिन हमें समझ नहीं आता कि आखिर हम इतना एडहॉक तरीके से काम क्यों कर रहे हैं। सर, कहीं कभी ऐसा लगता है कि सरकार ने इंडस्ट्रियल लॉबी के सामने सरेंडर तो नहीं कर दिया? जितने इस हिंदुस्तान के अंदर चाइल्ड लेबर हैं, उतना ही नौजवान बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। और आज हमें ये पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जो बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, जो बच्चा दिशाहीन घूम रहा है, जिसके पास में लक्ष्य नहीं है, और कभी कभी मुझे लगता है, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के मुहाने पर खड़ा है, मैं बता दूं आप एक डेमोग्राफिक डिजास्टर के दहाने पर खड़े हैं, जिसका तो कोई आपको माफ नहीं करेगा। ऐसी परिस्थितियां बनने जा रही, आप कैसे पीछे रह सकते हैं? आपका तो फर्ज बनता था कि हर हाल में बच्चों को हम शिक्षित करते, उनको अच्छा नागरिक बनाते। और सर, सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि जो क्लास और जो बच्चा नौकरी के लिए जा रहा है, ऊपर से दूर से देखता है कि हाँ, कुछ लोग अच्छे घरों में पैदा हुए, अच्छे स्कूलों में पढ़े, उनको अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, उनको इज्जत मिलती। मैं मंत्री से कहना चाहता हूं, आज अगर 2 बच्चे आपके हों तो मेहरबानी करके एक को तो प्रिंस की तरह अच्छा खिलाइएगा, अच्छा पहनाइएगा, उसको सम्मान दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और दूसरे बच्चों को उन बच्चों की तरह पालिएगा जैसे हिंदुस्तान के चाइल्ड लेबर पाले जाते हैं। आपको पता लग जाएगा 70 वर्षों में हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है और क्यों पहुंच गया है और क्या उसका समाधान। मुझे कोई गलती नहीं इस बात को बताने के लिए कि जिस तरीके से पीस मील में हिंदुस्तान के बच्चों के साथ में काम किया जा रहा है, वो हिंदुस्तान के भविष्य को खराब करने जा रहा है, उससे फायदा नहीं होगा। आपने बच्चों में डिवीजन कर दिया। पूरी दुनिया चाहती है कि 18 साल से नीचे का बच्चा काम न करे, शिक्षा प्राप्त करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे और एक इज्जतदार जिंदगी जीने का सपना देखे। आप उनको बता रहे हैं कि बच्चा फैमिली एंटरप्राइज में काम करेगा। मैं आपको आगाह कर दूं, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक भयानक घटना घटी। एक लड़की के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, निर्भया के साथ में। जो छोटा बच्चा था जिसने सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज परफॉर्म करी, आप जानते हैं कौन था? वो चाइल्ड लेबर था। बोले फैमिली एंटरप्राइज में लाकर चाइल्ड लेबर लगाया गया था। तो चाइल्ड लेबर का जो मनोवैज्ञानिक स्तर है, जो मॉरल डिग्रेडेशन उसका हुआ है, जितनी नैतिक क्षति उसकी और उन बच्चों की हुई है जो चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, क्या आपको एसेस करने में देर लग रही है? मुझे लगता है कि आपको सच्चाई को रूबरू होकर सामना करना चाहिए और अपने शेल से बाहर आ जाना चाहिए। सर, मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो लोग हिंदुस्तान में गरीबी के इशू को एड्रेस करना चाहते हैं, वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और राष्ट्र को भी धोखा दे रहे हैं। मुद्दा गरीबी नहीं, मुद्दा प्रोडक्टिविटी है। आज की तारीख में जो भी हिंदुस्तान में पैदा हो, चाहे किसी कौम में हो, किसी मजहब में हो, किसी जात में हो, उसको पढ़ लिख करके वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स बनने का और एक इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार मिल जाना चाहिए था। आज जब हम गरीबों की बात करते हैं तो सर, गरीबी यह सिक्के का खेल नहीं, यह सिस्टम का खेल है। अगर गरीबी हिंदुस्तान में थी तो 47 तक थी, 50 तक थी तो गनीमत थी। 1950 के बाद जब हिंदुस्तान में हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद अगर हिंदुस्तान में गरीबी कायम है तो उसके लिए सरकार गुनहगार है और सिस्टम गुनहगार है। हिंदुस्तान का हर आदमी जो मेहनत करना जानता है, जो मेहनत करके आगे बढ़ना जानता है, अगर वो शिक्षित नहीं हुआ है, हुनरमंद नहीं हुआ है, तो अंडर प्रोडक्टिव है, वो गरीब और लाचार मजदूर नहीं। तो कब हम डेफिनेशन बदलेंगे इस चीज की? आज गरीबी के कारण ये कहा जा रहा है बच्चों को नौकरी कराई जा रही, आज गरीबी के कारण ये बताया जा रहा कि बच्चों को जो है मजबूर किया जा रहा नौकरी करने के लिए। सर, हम सवाल इस व्यवस्था पर ही सवाल उठाना चाहते हैं। आज हमारी परिस्थितियां ऐसी क्यों बन गई कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग गरीब हैं जिनके बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है। सरकार चाहती थी कि बच्चे स्कूल में हों, लेकिन बच्चा स्कूल में नहीं है। सारी सरकारी मशीनरी और सारी सरकारी व्यवस्थाएं असफल हो रही हैं और बच्चा चाइल्ड लेबर बन रहा है। और आज हम कंसेशन कर रहे हैं कि 14 से 18 साल के बच्चे को हम फैमिली एंटरप्राइज में काम करने का मौका देंगे। आप देख लीजिए, 80% से भी ज्यादा वो बच्चे जो रिट्राइव किए गए हैं, चाइल्ड लेबरर्स, वो फैमिली मेंबर्स के साथ में ही ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं। सर, मैं खाली 5 मिनट में खत्म कर देना चाहता हूं। नहीं, आपका समय खत्म हो गया। सर, गवर्नमेंट हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिस्टम। सर, मैं अकेला बोल रहा हूं अपनी पार्टी से। सर, आपको मुझे मौका देना चाहिए। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सच्चाई तो सर ये है कि जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज हैं,
आज सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को नन्हे बच्चों की है। मैं अभी कुछ दिन पहले टीवी देख रहा था सर, 2016 में, हैरत की बात है 2016 में आज दिल्ली के आसपास में बहुत सी ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर नन्हे नन्हे बच्चे प्रोक्योरमेंट किए जाते हैं, उनसे काम लिया जाता है, वो जानते हैं कि जो करने वाले हैं बच्चे की नहीं। और मैं टीवी में देख रहा था कि किस तरीके से बच्चों को लाया जा रहा था, किस तरीके से उनसे काम लिया जा रहा था, कैसे उसके लंग्स छलनी हो जा रहे थे वो हजारस गैसेस के माध्यम से, और जब मर जाते थे तो बच्चों को बताया जाता था कि वो मामा से मिलने चला गया। इट वॉज पैथेटिक, इट वॉज रियली पैथेटिक। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन आपको देखना चाहिए था क्या सलूक हम अपने बच्चों के साथ में कर रहे हैं। जो सूची आपने बनाई है हैजार्डस इंडस्ट्रीज की, प्लीज उसको रिवाइज करिए, उसको प्लीज रिवाइज करिए। और किसी भी हाल में सर हम इस बात के लिए जमीन से आसमान तक लड़ने को तैयार हैं कि 14 से 18 साल तक के बच्चों को काम से लगाने का प्रयास मत करिएगा। ये चेतावनी हम आपको देना चाहते हैं। श्री नवनीत कृष्णन सर, कुछ इश्यूज हैं। सर एक मिनट सर, ओनली वन मिनट। I have already called Mr. Navneet Krishnan. I am concluding sir. No. सर ट्रैफिकिंग एक इंडस्ट्री बन करके सामने आ चुकी है। Nothing will go on record. मैं कह देना चाहता हूं, Nothing will go on record. Please, Mr. Navneet Krishnan. Mr. Navneet Krishnan ji. सर 1 minute. I'll conclude within 1 minute. सर हिंदुस्तान की जो बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं उसमें ट्रैफिकिंग है, उसमें चाइल्ड अब्यूज है, उसमें क्राइम है, उसमें पॉवर्टी का जो साइकिल है और जो सोशल डिवीजन है जो आज हिंदुस्तान को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, वो केवल और केवल इसी चीज से निकल के आया है कि सरकार ने बच्चों की उपेक्षा की है। कोई भी देश जो बच्चों की उपेक्षा करता है कभी I would like to record in this house that